everyone. The exciting final basketball match has come to an end and now we move towards the prize distribution and closing ceremony. सबसे पहले हम अपने एस्टीम गेस्ट का हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं कालरा सर से निवेदन करूंगी कि सबको फूल माला के साथ स्वागत व सम्मानित करें। मैं सबसे पहले सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर मनोज यादव मैम का स्वागत करें। इसके बाद मैं सर से ये रिक्वेस्ट करूंगी संदीप सिंह शेखावत सर का माला के साथ स्वागत करें। एक बार मैं फिर सर से निवेदन करूंगी मनोज कुमार शर्मा जी को माला के साथ स्वागत करें। अब हम स्वागत करते हैं विक्रम सिंह शेखावत जी का। मैं एक बार फिर सर से निवेदन करूंगी हमारे बीच पधारे तरुण जैन जी का भी फूलों के साथ स्वागत करें। अब हम स्वागत करते हैं निरंजन सिंह जी का। हमारे बीच राम सिंह जी भी उपस्थित हैं, हम इनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच भव्या भी उपस्थित है। मैं दीपांशी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे मंच पर आएं और फूलों की माला के साथ उनका स्वागत करें। हमारे बीच आराध्या भी हैं, हम इनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मैं नुपुर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इनका भी स्वागत करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मैडम मनोज यादव जी उपस्थित हैं। मैं इनके बारे में आप सभी को पहले थोड़ा सा बता देना चाहूँगी। She has graciously accepted our invitation to encourage us and to motivate us. Miss Manju Yadav is a passionate sports enthusiast. She did postgraduate in economics with a fellowship from Insurance Institute of India, Mumbai. At present, she is working as an assistant divisional manager at LIC of India, Alwar. She is fitness enthusiast since childhood and began her running journey in March 2023 with a low at NMIMS, Chandigarh, and took second runner-up. Ladakh Run and Jaisalmer Hell Race 50 km was a special experience for her. मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं मैम से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने कुछ शब्द रखें हमारे बीच में। आज अच्छी तरह बोल सकते हो, माइक अच्छा होगा। माइक थोड़ा गड़बड़ होता था। Very good evening to everyone present here. Today I received a call from Sir Kaga sir that a basketball match is going to end, and it was an honor for me to come and grace the occasion and to watch the two very strong teams playing. Both the teams were very strong, and it was very nice watching this basketball match. Each and every team and each and every player had such a nice coordination. Somebody was good at shooting, somebody was good at passing. But overall, it is the teamwork that gives that is the deciding factor for winner and loser. I would say that in sports, anyone who is playing is a winner. At that spur of moment, somebody is winning and somebody is losing. But everyone who has participated is a winner. So it's a great thing. You keep continuing your sport journey and studies. Everybody is doing. आप सब स्कूल में जा रहे हैं, हर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन this
participating in sports is altogether a different experience. This is what makes you different from rest of the class. पढ़ाई के साथ में आप खेल रहे हैं. Physical and mental development both are important. So mental development, everybody is coming to the school and doing it. But you are those special children who are contributing towards your physical development as well as, you are inculcating so many important qualities which other people, other children who are just studying, I think they are missing out something. You are enjoying this nature. You are inculcating a team spirit. You have a coordination factor, discipline, time management. So congratulations to each one of you who has participated here. Thank you so much. थैंक यू मैम. मैं अब विशन कालरा सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम को मोमेंटो देकर सम्मानित करें. थैंक यू सो मच मैम. आज हमारे बीच उपस्थित हैं दीप सिंह शेखावत जी. हम इनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं. हमेशा शांत और सौम्य रहने वाले दीप सिंह शेखावत जी अपने यहाँ काम करने वाले छोटे से छोटे कर्मचारी से भी प्यार से मिलते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और उनकी हर संभव मदद करते हैं. सादगी और धैर्य की मिसाल आदरणीय दीप सिंह शेखावत जी का अपने आप को अनुशासित जीवन शैली में रखने का हर संभव प्रयास करते हैं. मैं सर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि सर भी मंच पर आएं और बच्चों को मोटिवेट करें. का बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ इस बास्केटबॉल प्रतियोगिता में बुलाने के लिए. ये बास्केटबॉल प्रतियोगिता को लेके जो हमारी विज़न था वो मेरे फादर की मेमोरियल में, तो सर ने मुझे सजेस्ट किया कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे बच्चे कुछ प्रेरित हों और फिटनेस को लेके थोड़ा जागरूक हों. बाकी हालांकि आप लोग तो पहले से ही बास्केटबॉल के अच्छे प्लेयर हैं. मैंने मैच देखा तो बहुत अच्छा आपकी तरफ से दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला और विजेता टीम को मेरी तरफ से बधाई. और मैं सब बच्चों से यही आग्रह करना चाहता हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने यही कहा था कि आप लोग एक बहुत अच्छे स्तर पर, एक बहुत मतलब फिटनेस को लेके आप लोग एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो, तो इसको जारी रखिएगा. स्टडीज़ इसके साथ रखिएगा, स्टडीज़ चलती रहेंगी. बाकी फिटनेस ज़रूरी है, वो किसी भी माध्यम से हो, बास्केटबॉल हो या आप और भी कोई भी गेम करें. तो मेरा सभी बच्चों से यही कहना है कि आपको सर का गाइडेंस प्रॉपरली मिलता रहे और आप लोग इसी तरह अपनी फिटनेस को लेकर जागरूक रहें. धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. अब मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ कि हमारे सम्मानीय अतिथियों को मोमेंटोस भेंटकर सम्मानित किया जाए. तो मैं एक बार फिर सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि सर दीप सिंह शेखावत जी को मोमेंटो के साथ सम्मानित करें. हमारे बीच तरुण जैन जी भी उपस्थित हैं. हम इनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं. मैं सर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पर मंच पर कुछ शब्द रखें. तरुण जैन जी. मैं सबसे पहले हमारे अंकल जी स्वर्गीय ठाकुर सुंदर सिंह शेखावत जी की स्मृति में जो नियमित रूप से बास्केटबॉल प्रतियोगिता चल रही है उसके लिए श्री भूषण कालरा जी सर का व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं. और अरावली स्पोर्ट अकादमी और बाल भारती जो शिक्षा समिति है इनका स्पेशल रूप से थैंक करना चाहता हूं कि जिस तरह से कार्यक्रम हो रहा है बच्चों के लिए बास्केटबॉल का, तो ये नियमित रूप से मेरी निजी राय है कि इस तरह के जो ट्रॉफी टाइप जो आयोजन होते हैं कि टूर्नामेंट किसी भी गेम्स होते हैं तो वो नियमित रूप से होने चाहिए. इसके लिए सर अंकल श्री भूषण कालरा जी का स्पेशल थैंक है और दीप सिंह शेखावत मित्र भाई इनका धन्यवाद कि इन्होंने एक अच्छी सोच रखी और एक
कार्यक्रम जो बनाया है इन्होंने उसको नियमित रूप से संचालन करवा रहे हैं, तो इसके लिए सभी का धन्यवाद। और यहाँ जो पधारे हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोजन किया है, उनके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं एक बार फिर विशन कालरा सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर को भी मोमेंटों के साथ सम्मानित करें। हमारे बीच विक्रम सिंह शेखावत सर भी उपस्थित हैं। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पर मंच पर आएं। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ शब्दों से बच्चों को मोटिवेट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। विशन कालरा सर का बहुत अच्छा है कि आप सबके लिए स्पोर्ट्स के लिए इतना करते हैं। आप खुद इस एज में भी इतना सारा सुबह से जल्दी जगना और सब कुछ इन्हीं से आप सीखें। और जिस तरीके से इन्होंने ये सब चीज़ें करी हैं, आप लोग भी इसी तरीके से करें। इनके द्वारा इतना अच्छा प्रोग्राम कराया गया हमारे ठाकुर सुंदर सिंह शेखावत जी के लिए, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे बीच मनोज कुमार शर्मा जी भी उपस्थित है। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि मंच पर आएं और साथ ही सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि सर भी इन मोमेंटों के साथ इनको सम्मानित करें। मनोज कुमार शर्मा जी। मेरा तो बस यही कहना है कि हेल्थ इज वेल्थ। थैंक यू सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ संदीप सिंह शेखावत जी को कि वे मंच पर आएं। सभी खिलाड़ियों को खेलते हुए बहुत अच्छा लगा। सभी खेल भावना से खेल रहे थे। साथ में जब मैं एपी स्कूल से पास आउट है, हम एपी स्कूल में खेला करते थे, वही दिन मुझे याद आ गए। तो मैं उसमें चैंपियन था। पीछे से जैसे खिलाड़ी आगे बढ़ता रहता था तो पीछे से हाथ मार के बॉल को बाहर भगा देते थे। तो वो सारी चीज़ें याद आई मुझको देख के। मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है क्योंकि मैं यहाँ पे होता नहीं हूँ। बल बहुत अच्छा खेला सभी बच्चों ने। थैंक यू सर। मैं एक बार फिर सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर को भी मोमेंटों के साथ सम्मानित करें। अरावली खेल अकेडमी के तत्वाधान में आयोजित द्वितीय ठाकुर सुंदर सिंह शेखावत मेमोरियल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में उपस्थित सभी महानुभावों और खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत है। खेलों के क्षेत्र में हमारे अलवर की ये यशस्वी परंपरा रही है। हमने उसी परंपरा को निभाते हुए हमने अपने जिले के युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का निश्चय किया था। इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए दीप सिंह शेखावत जी और उनके मित्रों ने पर्दे के पीछे रहकर जो योगदान दिया, उसके लिए हम सब उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। बास्केटबॉल के इस टूर्नामेंट में हमारे जिले की सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने जिस धैर्य और अनुशासन का परिचय दिया है, उससे हमें ताकत मिलती है और हमारा मनोबल बढ़ता है। इसलिए हम सभी खिलाड़ियों का भी धन्यवाद करते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी खिलाड़ी हमारे आने वाले कल हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हम एक खिलाड़ी की हैसियत से एक बात अवश्य कहना चाहते हैं, हमेशा ही दुनिया में सबसे फिट खिलाड़ी बास्केटबॉल के होते हैं। आपको इस खेल में शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहने की जरूरत पड़ती है। इस खेल में आपको पूरे समय भागना होता है। थकान मिटाने का कम समय मिलता है। यदि आपकी एरोबिक क्षमता और कार्य क्षमता ज्यादा नहीं है तो 40 मिनट के खेल में आप टिक नहीं पाएंगे। यदि आप इस खेल में शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपनी सहन शक्ति और कार्य क्षमता दोनों बढ़ानी होगी। आप अनुशासन और नियमित अभ्यास से ही सफल हो सकते हैं। ड्रिबलिंग, पासिंग, डिफेंस और रिबाउंडिंग सबसे महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं जिसमें प्रत्येक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी को महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है। एक खिलाड़ी के जीवन में हर दिन अच्छा नहीं होता। खेलों के मैदान में कभी कोई सदा आपसे आगे होगा। आप यदि जीत हार की चिंता करके खेलों में भाग लेते हैं तो आपको असली संतोष कभी नहीं मिलेगा। असली कुंजी खेल जीतने में नहीं बल्कि खेलते हुए आनंद लेने में है। हमें बस हर दिन यह सोचना चाहिए कि हम और कितना अच्छा कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर आएगा जो आपको ईमानदारी, लगन और अनुशासित जीवन शैली को अपनाने की सलाह देगा।
तय आपको करना है कि उसके साथ चलना है या फिर दर दर भटकना है। If someone can leave you so easily, let him go. He was never really meant for you. ईमानदारी और लगन से कार्य करने वाला इंसान कभी जीत हार की चिंता नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ वो कर रहा है वो सब कुछ कठिन मेहनत, संघर्ष, अनुशासन और समर्पण की भावना से कर रहा है। तो इसी कड़ी में अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं आज की विनर टीम को, सेंटा क्लब। तो हमारे बीच में जितने भी अतिथिगण पधारे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मंच पर आएं और हमारी विनर टीम को मेडल के साथ सम्मानित करें। सेंटा क्लब के खिलाड़ी हैं रिया, दिविशा, जैसिका, जानवी, पहर, अंशी, हिमांशी। अरावली, चेल्सी, दीपांशी, साक्षी, अमीशी, कनिष्का, पूजा, प्रिंस, वंशिका। इसके बाद मैं दोनों टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार साथ में मंच पर आएं। हमारी आज की रनर अप और विनर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार मंच पर आएं। एक बार उधर मुड़ जाओगे क्या?